Hello everyone, welcome to the class. In this session, we are going to solve practice set 4.2 from chapter 4 financial planning. All the problems in this practice set are based on GST in trading chain and input tax credit, that is ITC under GST. If we are clear with this concept, then we are going to be able to solve practice set 4.2. If you have not watched the previous videos before, link is given in the description. Watch that. Okay, so let's start with today's session. Question 1. Chetna store paid GST of 1 lakh 500 rupees at the time of purchase. तो खरीदते टाइम पे उन्होंने 1 लाख 500 लिया, दैट मीन दैट इज गोइंग टू बी आर इनपुट टैक्स, हमने पे किया है, ठीक है. एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 1,22,500 रुपीज एट द टाइम ऑफ सेल, दैट मीन्स दैट विल बी आउटपुट टैक्स जो सेलिंग टाइम पे मिलता है. ड्यूरिंग द 1 जुलाई ऑफ 2017 टू 31 जुलाई ऑफ 2017. आप सभी को पता होगा 1 जुलाई ऑफ 2017 वॉज द डेट व्हेन द जीएसटी वॉज अप्लाइड. फाइंड द जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर. तो हमें फाइंड करना है जीएसटी कितना, जीएसटी पेबल बाय द चेतना स्टोर्स. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस सॉल्यूशन. सो इनपुट टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, खरीदने टाइम पे जो हमने टैक्स पे किया था वो कितना है 1,500 रुपीज. तो अगर इनपुट टैक्स इतना है, दैट मीन्स आईटीसी वी कैन राइट इट लाइक दिस, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट will be rupees 1,500,000. Similarly, second condition is given to us that GST collected at the time of sale, and that is rupees 1,22,500. Now the question asked GST payable. So GST payable will be output tax. It's very simple, output tax minus ITC, that is input tax. So here rupees 1,22,500 minus rupees 1,500,000. So the GST payable will come as rupees 22,000. This is GST payable. GST payable. So final answer we can write it like that total GST payable by Chetna store is 22,000 rupees, and this is our final answer. The total GST payable by Chetna store is 22,000 rupees. Simple है, काफी easy लग रहा होगा आपको, right? This is how we calculate GST payable or if the input tax credit is asked. Let's move to the second question. In this question, Nazma is a proprietor of a firm, एक कंपनी के, registered under GST. She has paid GST of 12,500 on purchase, that is ITC हमें मिल गया. Collected 14,750, that is हमें क्या मिल गया, output tax मिल गया. What is the amount of ITC to be claimed? Okay, and what is the amount of GST payable? Okay, so simply first we will write what is given to us. So let's solve this. So here input tax is given to us 12,500. So therefore ITC input tax credit will be 12,500 rupees. So here we go, 12,500 rupees will be the ITC. Similarly, second, output tax collected at the time of sale, that is rupees 14,750. So output tax is this. Now at the end the question is asked what is the amount of GST payable. So simply GST payable will be equal to, can you tell me the formula now? You must remember it, output tax minus ITC, that is input tax. So output tax is rupees 14,750 minus rupees 12,500. यहाँ पे आईटीसी वही है जो हम इनपुट लगा रहे हैं, इनपुट टैक्स से आईटीसी होता है क्योंकि वही हमें क्लेम कर लेना है, वही हमें वापस मिल जाएगा. तो दैट इज ओनली आईटीसी. तो यहाँ पे आंसर विल कम एज 2,250 रुपीज, 250 रुपीज. सो द फाइनल आंसर विल बी amount of input tax credit to be claimed as 12,500
and the payable GST will be 2250 rupees. And that's how we solve this question again. I hope you got it. Let's move to the third question. Okay, third question is Amir Enterprise purchased chocolate sauce bottles and paid GST of rupees 3800. मतलब ने he sold those bottles to Akbari brothers and collected GST of 4100 rupees, 4100. That is आमिर ने किसी से खरीदा तो कितना पे किया GST 3800, मतलब इनपुट टैक्स कितना हुआ 3800. फिर अब आमिर ने अकबरी ब्रदर्स को वो बॉटल सेल कर दिए और GST कितना मिला 4100. दैट मीन आउटपुट ऑफ आमिर एंटरप्राइजेस विल बी आउटपुट टैक्स फॉर आमिर एंटरप्राइजेस 4100 रुपीज. फर्दर आमिर ब्रदर सोल्ड द बॉटल्स टू मयंक फूड कॉर्नर, मतलब कि मयंक फूड कॉर्नर ने परचेज किया बॉटल्स को अकबरी ब्रदर्स से और मयंक फूड कॉर्नर ने कितना पे किया GST 4500 रुपीज. ठीक है, तो यहां पे फाइंड करना GST पेएबल कितना होगा और CGST और SGST एवरी स्टेज पे कितना होगा. तो आमिर से अकबरी ने आमिर को पे किया था 4100, आमिर का इनपुट टैक्स था 3800. लेट्स सॉल्व दिस. काफी इजी है, बस 2-3 प्रोसेस में ज्यादा है तो थोड़ा सा लेंदी लग सकता है बट इजी ही है. लेट्स सॉल्व दिस. यहां पर मैंने ये फ्लो चार्ट इसीलिए बना के रखा है छोटा सा, जिससे मुझे ये स्टेजेस समझ में आए कि कितनी स्टेजेस में प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है बेचा जा रहा है तो GST कितना लगेगा. तो स्टेजेस के लिए फ्लो चार्ट बनाना काफी इजी होगा हर क्वेश्चन में. सो हियर फॉर आमिर एंटरप्राइज इनपुट टैक्स विल बी 3800 रुपीज, आउटपुट टैक्स विल बी 4100 रुपीज जो उन्हें अकबरी ब्रदर्स से मिला. तो यहां पर जो GST पेएबल हो जाएगा फॉर दिस फर्स्ट स्टेज, GST पेएबल will be output tax minus input tax and that will be rupees 4100 minus rupees 3800, as so GST payable will be total rupees 300. तो यहाँ पे GST कितना पे करना पड़ेगा इन्हें rupees 300. Therefore CGST will be how much? Can you quickly tell me? That will be half of GST. So this CGST will be half of GST, that means rupees 150. This will be CGST and therefore SGST will be equal to CGST and that will also be equal to rupees 150. Clear है यहाँ तक? Now this is clear for Amir Enterprises. Now for Akbari brothers, the इनपुट टैक्स विल बी 4100 रुपीज जो उन्होंने आमिर एंटरप्राइजेस को दिया था और आउटपुट टैक्स विल बी 4500 जो उन्हें मयंक फूड कॉर्नर से मिल रहा है. सो लेट्स राइट दैट एंड फाइंड GST पेएबल. सो हियर यू कैन सी इनपुट टैक्स 4100, आउटपुट टैक्स 4500. सो देयरफॉर GST पेएबल विल बी हाउ मच? कैलकुलेट एंड टेल मी क्विकली. GST पेएबल विल बी रुपीज आउटपुट टैक्स, पहले आउटपुट टैक्स minus ITC, that is 4500 rupees minus rupees 4100. Therefore GST payable will be 400 rupees. तो इतना GST payable हो जाएगा. अभी GST आ गया तो therefore can you tell me quickly what will be the CGST? CGST will be half of it, that is 200. And similarly therefore SGST will also be 200 rupees. Clear है यहाँ तक? So here we got the both GST payable, CGST and SGST for both the stages, that is Amir Enterprises and Akbari brothers. So our final answer will be for Amir Enterprise GST was 300, so CGST will be 150, SGST will be 150. For Akbari brothers the GST was 400, we calculated GST 400, so CGST is 200 and the SGST is also 200. And this is our final answer, and this is how you will write in your board exams also, like properly in this sequence, right? Let's move to the next question, fourth problem of the exercise. In this question it is given Malik Gas Agency चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी. तो यहाँ पे SGST नहीं आएगा, हम UT GST कैलकुलेट करेंगे. देख क्लियर है राइट? यूनियन टेरिटरी की बात कर दिया है, अदरवाइज दे सेम ही होते हैं, बस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में थोड़ा बस वही नेम का डिफरेंस है. परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर
24,500 रुपीज। तो यहाँ पे परचेजिंग अमाउंट दिया है, ये जीएसटी नहीं दिया है, ठीक है, जीएसटी हमें फाइंड करना पड़ेगा। एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर 26,500 रुपीज। ओके, फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। तो हमें यहाँ पे जीएसटी का रेट दिया तो बस हमें ये फाइंड कर लेंगे। हेंस द सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी हमें फाइंड करना है फॉर द ट्रांजैक्शन। काफी इजी लग रहा है मुझे, तो लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, जीएसटी रेट फाइंड करेंगे, दैट इज 5%। तो 5% किस पे लगेगा, परचेजिंग अमाउंट पे भी और सेलिंग अमाउंट पे भी, दोनों पे ही। तो हम सिंपली वी कैन राइट आईटीसी इक्वल टू 5% ऑफ ₹24,500। तो ये हो गया आईटीसी। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 5/100 इंटू 24,500, 0 कैंसिल हियर, लेट्स मल्टीप्लाई देम, वी विल गेट ₹1,225। दिस विल बी आवर इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो वी गॉट इनपुट टैक्स क्रेडिट for Malik Gas Agency, that is ₹1,225. Now the agency sold the cylinders to the customers for ₹26,500. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, जीएसटी, दैट इज आउटपुट टैक्स के फॉर्म में। तो हम लेट्स कैलकुलेट दैट एज वेल। तो यहां पर देख सकते हो मैंने लिखा है एजेंसी सोल्ड द सिलेंडर्स टू कस्टमर फॉर 26,500 रुपीज। आउटपुट टैक्स बाय एजेंसी विल बी 5% ऑफ 26,500। मतलब पहले हमें टैक्स जीएसटी का रेट पहले फाइंड कर लेते हैं, जितना कितना पैसा देना पड़ेगा। तो 5% ऑफ 26,500, दैट इज 5/100 इंटू 26,500 एंड 0 कैंसिल हियर एंड वी मल्टीप्लाई दिस। सो वी गेट हियर एज आउटपुट टैक्स ₹1,325 रुपीज, 1,325 रुपीज। गॉट इट। नाउ वी कैन फाइंड द जीएसटी पेएबल। तो हमें यहाँ पे इनपुट टैक्स मिल गया, आउटपुट टैक्स मिल गया। जब दोनों टैक्स मिल चुके हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, जीएसटी पेएबल फाइंड करेंगे। सो हियर वी गेट आउटपुट टैक्स एज ₹1325, आवर इनपुट टैक्स इज ₹1,225। सो द जीएसटी पेएबल विल बी रुपीज कितना, जल्दी से बता दो, 100 रुपीज। सो हियर वी गेट जीएसटी पेएबल टोटल, दैट इज ₹100। Similarly, we can find the CGST. CGST will be half of GST and that is half into 100. So the CGST will be ₹50, मतलब 50 रुपए CGST लगेगा उस पे, ₹50। And similarly here we have to find UTGST, not SGST. तो UTGST will be half of GST again and that will be half of 100. So this is similar to SGST only. So this will also be ₹50। मतलब जो यूनियन टेरिटरी को जाएगा अमाउंट और जो CGST हो जाएगा वो किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अमाउंट जाएगा। So therefore our final answer will be, so in the question it was asked find hence the CGST and UTGST to be paid for this transaction। तो कितना पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मलिक गैस एजेंसी पेड GST ₹100 और CGST as 50 and UTGST as 50 रुपीज। एंड दैट्स हाउ वी कैलकुलेट दिस। काफी इजी लग रहा होगा अभी तक, आपको समझ में आ रहा है, आई होप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो इन द 5th क्वेश्चन इट इज गिवन मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एक फॉर्म है, रजिस्टर्ड फॉर्म है अंडर जीएसटी, पेड 18% जीएसटी बिकॉज ये कॉस्मेटिक्स है, ये लग्जरियस है थोड़ा सा, तो ये इसेंशियल से ऊपर आते हैं इसलिए इसमें ज्यादा रेट है यहाँ पे 18%। ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ 6,000 रुपीज पे 18% जीएसटी पे किया एंड सोल्ड इट टू कस्टमर फॉर 10,000। मतलब कि 6,000 का इन्होंने खरीदा और 10,000 में सेल कर दिया, यहाँ पे इन्होंने जीएसटी मिला होगा, ठीक है, हमें वो कैलकुलेट करना है। व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड। मतलब कि टैक्स इनवॉइस में कितना अमाउंट इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट रहा होगा। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 18% का हमें 6,000 दैट इज हमें इनपुट टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर आउटपुट टैक्स और फिर उससे हमें मिलेगा जीएसटी कितना पे किया गया है। ओके, सो लेट्स डू दिस। सो टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज दैट इज आईटीसी कैलकुलेट कर लेते हैं, 18% ऑफ 6,000 रुपीज। So this will be 18/100 into 6,000, 0 cancel here, 18 6 108, so that is 1,080 rupees will be the
ITC टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। नाउ आउटपुट टैक्स फाइंड करते हैं। यहाँ पर टैक्स कितना पे किया था, मतलब सेलिंग कितने में की 10,000 का, तो 10,000 का 18% विल बी द टैक्स जो आउटपुट टैक्स के रूप में होगा जो उन्हें मिला। सो दिस विल बी, लेट्स कैलकुलेट दिस। सो हियर इट विल बी रुपीज 1800, rupees 1800 will be the output tax. So simply therefore GST payable will be how much? GST payable will be output tax. This will be 1800 subtracted by 1080, 1080. So GST, total GST here it will be 720 rupees at the, मतलब कि टैक्स कितना पे मिला जब ये परचेजिंग टाइम पे था। नाउ अभी यहाँ पे समझने की ये जरूरत है कि ये जब आईटीसी था, मतलब परचेजिंग टाइम पे इन्होंने कितना पे किया होगा गवर्नमेंट को, 1080 इन्होंने पे किया, सपोज 18% पे किया। अब जब ये सेलिंग टाइम पे इन्हें 1800 टैक्स मिलता है, तो क्या आपको लगता है 1800 फिर से टैक्स पे करेंगे? नहीं, राइट। कितना गवर्नमेंट को और पे करना पड़ेगा? डिफरेंस, दैट इज कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा? 720 रुपीज और। तो टोटल कितना टैक्स हुआ, टोटल उन्होंने कितना पे किया ये फाइंड करना हमें, राइट, बिकॉज इनवॉइस से पूछा टोटल कितना पे करना पड़ेगा। सो हियर द टोटल जो जीएसटी उन्होंने पे किया, पहले किया 1080 रुपीज एट द टाइम ऑफ परचेज, और सेलिंग टाइम पे जितना आया उसका आईटीसी जो उन्होंने, मतलब कि डिफरेंस जो पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा? 720 रुपीज। सो टोटल जीएसटी पे करना पड़ेगा, दैट विल बी 1800 रुपीज टोटल जीएसटी पे करना पड़ा। टोटल जीएसटी, दिस इज टोटल जीएसटी, remember this is the important point here, do not get confused. Total GST will be rupees 1800, therefore CGST will be equal to SGST only, and this will be half of GST. So this will be half of 1800 and it is 900. That means Messrs Beauty Products paid 900 as CGST and 900 as SGST each. So this is how this question is supposed to be solved. So let's move to the sixth question. This is quite lengthy but not difficult, trust me. The only thing is here is we have to see the tax invoice. इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन कि प्रिपेयर अ बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब कि एक शॉपकीपर से जब हम कोई सामान खरीदे, सपोज डीमार्ट में जाकर अगर हम खरीदे, तो वहां पे जो हमें बिल मिलेगा वैसा बनाना एक टैक्स इनवॉइस यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है और हम करते हैं। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। हियर इज द सैंपल टैक्स इनवॉइस आई हैव क्रिएटेड फॉर दिस क्वेश्चन। सो यू कैन सी हियर GST identification number is given. You can see here that the shopkeeper's name, the supplier's name is here, precise address, invoice date, कब का है, किस दिन का ये बिल निकाला जा रहा है, और bill number, the invoice number. In the first column it is given the serial number, how many products are there. Second column has HSN code which is assigned to the particular product. Name of the product is given in the third column. Here mobile battery is given as one quantity for 200 rupees and the rate of GST is 12%, that is CGST for 6% and SGST for 6%, and this is, so taxable amount here is 200, जितना का मोबाइल बैटरी उसका 6% will be 12 rupees. So you can see here 6%, that means 6 by 100 into 200, this is 0 cancel, this is 12 rupees only. So 6% of 200 will be 12 rupees. So 12 rupees as CGST. Similarly CGST will be 12 rupees. So the total amount of mobile battery will with including GST will be 224 rupees, that is 24 as GST. Headphone is for 750 rupees per headphone per quantity, that is taxable amount 750 rupees. 18% is the GST here, so that is 9% is the CGST, 9% CGST and 9% SGST. So 9% of 750 rupees will be how much? This is 0 cancel and multiply and solve this.
so you will get 67.5, that is 67 rupees 50 paise. Similarly, CGST will be 67 rupees 50 paise or SGST also will be 67 rupees 50 paise. So the total amount for headphones including GST will be 885 rupees. So here the total price of the products is 950 rupees, mobile battery and headphone. The total GST is CGST is 79 rupees 50 paise. Similarly, SGST is also 79 rupees 50 paise. So the total cost the person will have to pay to the shop owner, that is 1109 rupees. So you can see here the GST tax invoice यहाँ पे, और इतना उसमें अमाउंट पे करना पड़ेगा. एंड दिस इज हाउ द सैंपल इनवॉइस लुक्स लाइक एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन. सो यहाँ पे बोला था टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर करना है और ये हमने टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर कर दिया विथ इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स हियर. सो आई होप यू गॉट दिस कंप्लीटली. तो इतना ही इजी है. अगर एग्जाम में भी आता तो हमें सेम टू सेम ऐसे ही करना है. कैलकुलेशन हम साइड में कर सकते हैं. नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Here also we have to prepare a tax invoice, but this time it is business to business tax invoice. मतलब यहाँ पे सपोज करो कि डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास जा रहा है या फिर मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, कस्टमर के पास नहीं जा रहा है, तो उसका टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर करना है. ऑल द डिटेल्स आर गिवन हियर, रिसिपेंट्स एड्रेस, सप्लायर्स एड्रेस, आइटम्स और कितना यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी कितना है 12%. सो फॉर दैट आई हैव प्रिपेयर्ड अनदर tax invoice, a sample tax invoice, and let's understand this completely. So here in this tax invoice what is given? Supplier's name, the supplier's precise address, receivers किसको जा रहा है आइटम उसका नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, इनवॉइस बिल नंबर कौन सा नंबर का है, किस डेट का है, तो डेट इज गिवन, एंड द जीएसटी आईएन नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर सप्लायर, GST identification number for receiver. First column has serial number, how many products are there, HSN code for each product, name of the product is the third column, that is pencil box लिया है और jigsaw puzzles लिया है. तो pencil box खरीदा 20 रुपीज पर बॉक्स के हिसाब से कितनी क्वांटिटी ली है 100, तो 20 रुपीज पर बॉक्स का, तो 100 का कितना हो जाएगा 200, दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट. सिमिलरली जिक्सॉ पजल, एक जिक्सॉ पजल 100 रुपीज का है और ऐसे कितने जिक्सॉ पजल्स ले रहे हैं 50, सो द टोटल अमाउंट विल बी 5000, द टैक्सेबल अमाउंट विल बी 5000. मतलब कि 7000 रुपीज का शॉपिंग किया, सपोज सामान खरीदा उन्होंने. आप देखते हैं रेट जीएसटी कितना लगेगा, टैक्स कितना देना पड़ेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी की फॉर्म में. यहां पर जीएसटी जो गिवन है 12% गिवन है, तो सीजीएसटी कितना हो गया 6% ऑफ 2000 रुपीज यहां पे फॉर पेंसिल बॉक्स. So this is 00 cancelled. So this is 26 are 120. So 120 as the CGST. Similarly 120 will be SGST also. तो यहाँ पे 240 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एज जीएसटी अमाउंट, टैक्स अमाउंट. तो 2000 प्लस 240 विल बी 2240 रुपीज. हो गया क्लियर? यहाँ पे काफी इजी है, राइट? सिमिलरली 12% इज ऑल्सो गिवन फॉर जिक्सॉ पजल्स. तो स्टेशनरी आइटम्स के लिए जनरली 12% ही है. तो 5000 का 6% कितना हो जाएगा? तो 6% ऑफ 5000 विल बी हियर 0 कैंसिल, 5 6 30, दैट इज 300 रुपीज. 300 रुपीज हो जाएगा सीजीएसटी. सिमिलरली 300 विल बी द एसजीएसटी. तो टोटल कितना टैक्स देना पड़ेगा जिक्सॉ पजल्स में? दैट इज 600 रुपीज. टोटल इन टोटल 600 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा प्लस 5000 के साथ. तो कितना हो जाएगा 5600 रुपीज विल बी द टोटल टैक्स अमाउंट. तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाता है? टोटल टैक्सेबल अमाउंट वाज 7000 रुपीज, सीजीएसटी इज 420 रुपीज, एसजीएसटी इज 420 रुपीज. तो यहाँ पे टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 7840 रुपीज एज द टोटल अमाउंट. एंड दिस इज आवर टैक्स इनवॉइस लुक्स लाइक. यहाँ पे देख सकते हो क्या डिफरेंस है B2B और B2C में. यहाँ पे दोनों सप्लायर्स और रिसीवर का नंबर दिया हुआ है, वहां पे सप्लायर बस का नेम और एड्रेस दिया था. मतलब वहां पे उसका जो आप कस्टमर है उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था. तो यहां पे ये होता है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो हियर वी हैव कम टू द एंड ऑफ द प्रैक्टिस सेट 4.2. ऑल क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली. ट्राई इट अगेन and this is how you will solve all the questions in your board exams and as well if the questions are coming from this part. Okay, so I hope you understand it. In the next video we are going to learn
Firstly, what are the composition scheme, what is the features of GST, and then we'll start with the shares. So that is the important part of this chapter. So guys, go just solve all the questions once again. Thank you so much.